No, this issue of scheduled castes and scheduled tribes, that will remain evergreen with UPSC. हम्म, वो पूछना ही है. शेड्यूल कास्ट क्वेश्चन दे आस्क इन alternate years, and scheduled tribe you have whole section paper 2 part 2. Hmm? So, but one thing I want to show you, Sangya, that you had this, you knew about this book that was in English. Now it has come in Hindi also. So if your elders or parents they are interested in reading, I think everybody should read it. That reveals how we have been befooled over the last 200 years. कैसे अंग्रेजों ने हमें बेवकूफ बनाया. Because this will be a great unifying book. We are fighting on the basis of caste, and caste is an alien concept. ठीक है ना. तो आप, मैं चाहूंगा कि लोग पढ़ें, और नहीं भी पढ़े तो दूसरों को बता तो सकते ही हैं जो पढ़ने वाले हैं. टुडे द इशू विद अस, पहले जो है, देयर वर टू न्यूज टुडे इन हिंदू. We will talk only about one of them, and this news that stands as it is, क्या कहती है? Socio-economic differentials within scheduled castes and scheduled tribes. Within scheduled caste, मतलब as if scheduled castes आ रहे monolith और scheduled tribes आ रहे monolith. तो उसमें होता क्या है? Even the article starts like that only. A common critique of group-based approach affirmative action policies is that treats the potential beneficiary groups as homogeneous class. In reality, as critics argue, rarely does a group turn out to be a homogeneous class. ये सिर्फ SC/ST की बात थोड़ी है. Every group will be homogeneous, heterogeneous. No group is homogeneous. आप किसी भी कास्ट की बात कर लो, सारे के सारे जो हैं वो वेल्दी नहीं होंगे, सारे के सारे पुअर नहीं होंगे. Then why should you talk in terms of caste? This article, it is very crucial in telling you, actually it is in two parts and you cannot see them, so I have split it into two parts. This is the first point that is here, which I was telling you about. The group-based affirmative action policies are seen as benefiting relatively advanced families from the beneficiary group. An inevitable consequence is widening intra-group inequality. This, in a way, goes against the very purpose of affirmative action, which is achieving greater equality in the society. Right from independence, we have been talking about bringing equality. Forget about SC/STs. You already know the top 1% people, they have 40% of the wealth of the country with them. Only yesterday, day before, there was a news in Times of India. The top 3 families in India, they have a wealth more than Singapore's. Singapore's wealth is more than that. So why to talk about equality or inequality in SC/STs only? Still, they have taken up in scheduled castes also, scheduled tribes also, from different states, one community which is wealthy or better off, and other one which is opposite, almost opposite, though it is not. बहुत सारी जगह पे इन्होंने क्या किया, एसटीज में they have taken up a community, the other one they have taken up PVTG. PVTGs can never be compared with other tribals, any other tribe. So उनकी conditions are totally different, but still they have done it. They have firstly started with urban. Obviously, those who are wealthy, better off, they'll be in the urban condition. And if you are urban condition, you'll have better education, you'll have better health, you'll have better opportunity for jobs. तो उसको स्टैटिस्टिकली मेजर करने से कोई ज्यादा एम्फेसिस थोड़ी होने वाला है, बट दे हैव डन इट. वो एम्फेसाइज क्या किया है, इन फेवर ऑफ
क्रिएटिंग सब कोटास। आप सब कोटा कर भी लो चाहे, अगर हम बात करें उससे, ये जो उन्होंने डिवाइड किया है, व्हाट दे हैव डन, द डाटा फॉर शोज फ्रॉम सेंसस 2011, एंड दिस 2011 तो हमेशा ही रहेगा जब तक कि नया सेंसस आता नहीं। और नया सेंसस कब आएगा, अब हम सभी पता है कब आएगा, है ना, डेट टेस्ट टेस्ट करके। Irony is how long you will rely on 2011 census. 14 years have already lapsed. जो पॉपुलेशन फिगर्स हैं उस टाइम की, हाउ मच इंक्रीज हैज बीन देयर, एवरी ईयर मोर देन 1.2 करोड़ पीपल आर एडेड। तो 15 ईयर्स में 25 करोड़ करीब करीब जुड़ गए होंगे। तो जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ विल बी फ्रॉम दैट ग्रुप्स ओनली, और उनका तो नाम ही नहीं है राशन कार्ड में। तो क्या कर रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे? आप चिल्ला रहे हैं कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाए, कास्ट, अरे सेंसस करा लो भैया, उसमें कास्ट बेस भी आ जाएगा अपने आप। कास्ट बेस्ड सेंसस कराने से क्या नेशन का इमेज बेटर हो जाएगा? द फैक्ट इज 2011 सेंसस जो था, इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टू डिसाइड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। एक्चुअली क्या था, आपने जब 1931 सेंसस किया था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डिसाइडेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या था उसमें? अगर आप चप्पल पहनते हैं तो आप फॉरवर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं। अगर आपके घर में बाजार से लिया हुआ चूल्हा है तो आप फॉरवर्ड हैं। अगर आपके घर में किताब है तो आप फॉरवर्ड हैं। अगर आपके घर में साइकिल है तो आप फॉरवर्ड है। अगर मकान पक्का है तो फॉरवर्ड है। उसके बेस पे उन्होंने बैकवर्ड डिसाइड किया, एंड ऑल दीज कंडीशंस वर देयर इन द फॉर्म दैट वाज देयर फॉर 2011 सेंसस, मॉडिफाइड ऑफ कोर्स। अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है, अगर घर आपके घर में ग्रेजुएट है, अगर आपके घर में गैस का चूल्हा है, so that criteria were already there to decide forward and backward, but nobody was interested। खाली ड्रामा करना है, इनको कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि इनको कास्ट बेस्ड चाहिए। फॉरवर्ड या बैकवर्ड कास्ट बेस्ड होता है, इकोनॉमी बेस्ड होता है। एवरीबडी इज क्राइंग कि कास्ट जो है सबसे खराब चीज है। मैं पहले भी बता चुका हूं हाउ ब्रिटिश डिड इट। अरे खराब है तो हटाओ ना फिर। नहीं, लेकिन हमें रिजर्वेशन तो चाहिए, उसके बेस पे बेनिफिट तो चाहिए, और चित भी मेरी पट भी मेरी। द फैक्ट इज, जिनको रिजर्वेशन नहीं है वो चाहते हैं कि कास्ट हटाओ, जो रिजर्वेशन वाले हैं वो चाहते हैं कास्ट हटाओ, लेकिन रिजर्वेशन रहनी चाहिए। रिजर्वेशन किस बेस पे रहेगी? यू हैव टू चेंज टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया का। वो उनको चाहिए नहीं, बिकॉज ऑल द स्पोक्स पर्सन ऑफ दीज रिजर्व कैटेगरी पीपल, दे आर वेल्दी ऑफ, एंड दे आर द स्पोक्स पर्सन, दे डिसाइड द ओपिनियन ऑफ दोज पीपल, दे आर द वन हु एक्चुअली एक्सप्लॉइट। सो दे हैव कंपेयर्ड। कैसे किया है कि they have decided firstly urban population. In Andhra Pradesh, total urban population is 33.4, all SCs 21.8%, और उनमें से जो वीकर वंस हैं वो है 15.8%। सॉरी, जो एफ्लुएंट हैं वो 15.8 है, जो वीकर हैं वो 5.6 है, मतलब 37% है उसका। इस तरह से दे हैव डन फॉर एवरीवन। हाँ, बिहार में ऑल एससीज 7.4%, पासीज में जो है 18% है अर्बनाइजेशन, और मूसाहर में 3% है। और एक चीज तो मुझे नहीं समझ में आती कि देर आर मेनी कम्युनिटीज लाइक मूसाहर, व्हाई दे आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट। जितने भी हमारे नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन पुट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट। उनको तो पीवीटीजीज में आना चाहिए, सिर्फ एसटीज में ही नहीं, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट देम। Everywhere you talk about, there all conditions for all states, not all states, some states. In Punjab, 37.4% urbanization, quite significant. SCs कम नहीं है। चमार्स have again almost similar, और मजहबी सिक्स जो हैं वो इससे करीब आधा है।
ऑन दैट बेसिस द रिजर्वेशन वाज अकॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट इन 2004-5, जिसकी मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। यूपी इंपॉर्टेंट है, 22.2% अर्बन है, ऑल एससीज आर 13.7, जबकि चमास जो है वो 13.3 ऑलमोस्ट, एंड मुसाहर 3। मेरे को नहीं लगता कि वो 3 भी होंगे। सो ऑल दीज स्टैटिस्टिक्स आर देयर, एंड इन टर्म्स ऑफ एसटीज, if you talk about in Chhattisgarh, 23.2% is urban. All STs 7.6, हलवा जो है वो 30.4 है, डबल ऑफ द नॉर्मल, और बैगा जो है 1.8 है। हालांकि इससे भी ज्यादा जो प्रिमिटिव हैं बिरहोर वगैरह, उनकी तो इन्होंने गिनती नहीं की, वहां तक पहुंचे ही नहीं होंगे शायद। तो एवरीवेयर झारखंड 24, ऑल STs 8.9, Oraon 14.2, much higher than the all. Or Mala Pahadia, you know about Mala Pahadia, Malays, 1.1. Again, this is PVTG. But their convenience is there when they compare normal tribe with the PVTG. Obviously, significant differences will be there, and these will continue to haunt the wiser people. The reason is, अभी लास्ट टू लास्ट बजट में दे कैप्ट आई थिंक 20,000 करोड़ रुपीज फॉर पीवीटीजी। अभी तक उनका काउंट नहीं हो पाया, मतलब 17 महीने हो चुके करीब करीब। कब तक काउंट होगा, कब वो 3 साल के लिए अल्टीमेटली दैट लैप्स। दैट शोज हाउ सीरियस द गवर्नमेंट इज। सवाल फिर वही उठता है, व्हेन यू सी दैट ऑल दीज डिफरेंसेस आर देयर within the community, and these decide firstly on the basis of rural urban, and secondly decide on the basis of poverty. तो हम रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यही क्यों ना रखें भाई। द वीकेस्ट अमंग्स द वीकर, दे डिजर्व द मोस्ट। आप कास्ट बेस करते हैं, इकोनॉमी कास्ट बेस नहीं होती, इकोनॉमी फैमिली बेस्ड होती है भाई। तो फैमिली शुड बी एट द बेस। तो फैमिली की इकोनॉमी कैसे डिसाइड करोगे, हमारा तो जुगाड़ मास्टरी है। आपकी इनकम 50,000 भी है, फिर भी आप 5,000 रुपए दे करके बनवा लेते हैं सर्टिफिकेट पॉवर्टी का। आपका बच्चा स्कूल में एडमिशन हो जाता है, फैसिलिटी मिल जाती है, तो कोई भी कर लेगा। सो ओनली थिंग दैट आई हैव सजेस्टेड, पहली बात तो ये है कि एजुकेशन इज अ मस्ट, एंड इन वन ऑफ द वीडियो आल्सो आई टोल्ड यू दैट एजुकेशन यू शुड बी यूनिवर्सल, क्वालिटी, एंड ऑन द पैटर्न ऑफ स्टडी नाउ पे लेटर। मैंने डिटेल भी बताए। तो एजुकेशन कैन बी द क्राइटेरिया, एजुकेशन मीडियम कैन बी द क्राइटेरिया, द स्कूल कैन बी द क्राइटेरिया। अगेन मैं पहले भी कह चुका हूं कि 70% ऑफ द स्कूल्स आर गवर्नमेंट रन, एंड 30% ऑफ द स्कूल्स आर रन बाय द प्राइवेट, इंक्लूडिंग पब्लिक स्कूल्स। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं, 50-50। सरकार को 50% रिजर्वेशन करना है ना। तो जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो नवोदय और टैलेंट वाले नहीं, या आर्मी स्कूल नहीं, नॉर्मल जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, दे आर द पीपल हु डिजर्व, एंड मोस्ट ऑफ देम विल बिलोंग टू ऑल दीज पीपल हु आर एससीज एंड एसटीज एंड ओबीसी। सम विल बी फ्रॉम द अपर कास्ट आल्सो, क्योंकि सारे अपर कास्ट तो वेल्दी नहीं है ना भाई, तो उनको भी तो जरूरत है। तो यू आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। अभी 2 महीने पहले मैंने एक आपको वीडियो बनाई थी, एंड इट वाज फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। क्या बताया गया था उसमें कि तमिलनाडु के शेड्यूल कास्ट दे आर बेटर ऑफ देन द अपर कास्ट ऑफ बिहार। सो वेयर विल द थिंग्स एंड? एंड रिगार्डिंग कास्ट स्टिग्मा, वो मैं फिर एक वीडियो में कह चुका हूं, मस्ट रिजर्वेशंस गो। इक्वालिटी की बात सिर्फ घोषला है, नियत नहीं है सबसे बड़ी बात। इस तरह का पैटर्न चलते रहिए, 100 साल, 2 साल, 300 साल में वो लोग ऊपर आ ही जाएंगे, तब तक अपर कास्ट नीचे चले जाएंगे, फिर आप उनके लिए रिजर्वेशन कर लेना। और इस तरह के सर्वेज भी आते रहेंगे।
आप लोग एग्जाम में भी लिखते रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग तो बन जाएंगे आईएएस, फिर आप दूसरों को उपदेश देना कि नहीं भाई एससी एसटी के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अभी से माइंड में एक नक्शा होना चाहिए कि क्या करना है। और मैं हमेशा कहता रहा हूं डेवलपमेंट के चार ही चीजें होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट। और आपको एक चीज आज और बता दूं कि इफ ए नेशन हैज टू डेवलप इट मस्ट हैव फाइव थिंग्स: हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लाइफ ऑफ डिग्निटी। राइट टू लाइफ नहीं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। एंड फिफ्थ शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। अगर आप इस नजर से नहीं सोचेंगे तो आप बन गए विश्व गुरु। गॉट इट? थैंक यू।